Good morning, students. I am A.K. Misra. We discuss energy of capacitor and how to solve the problem related to the capacitor. Okay. In previous chapter, we have already, in previous 3 videos, we have already discussed about the capacitor, what is capacity, capacitor, different types of capacitor, combination of capacitor. Today we discuss energy of capacitor. Okay. First of all, we know what is the capacitor. Capacitor, we have already discussed about the capacitor, which is a device which accumulates the charge and increase the capacity of given device. किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम सबसे पहले तो हम कैपेसिटर यूज करते हैं. कैपेसिटर का काम होता है चार्ज एक्युमुलेट करना. तो जस्ट लुक हियर, सपोज वी हैव अ 2 plate of capacitor which joined by a voltage source. V. It is the positive plate It is the positive plate of capacitor. It has area, it considered as a P and it is as a Q. P and R, we are taking P and R. Now it is the positive plate. So during the charging of capacitor, the positive charge accumulated over the plate. यानी जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में क्या होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है. ये ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव प्लेट है और पॉजिटिव चार्ज इस पे एक्युमुलेट हो रहा है. इट मीन्स देयर विल बी सम रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू केस. यहाँ पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव दोनों मिलकर के क्या करेगा, रिपल्सन करेगा. और रिपल्सन के कारण दैट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव also accumulate over this plate, so they get repelled. So this positive slightly try to move towards the negative and it creates some another phenomena which discuss later on in electromagnetic theory. So today we discuss when it is a positive, P is the positive plate and R is the negative plate. Okay, let P and R is a positive and negative plate. Positive and negative plate. Of capacitor. Okay. So during the charging, of capacitor, positive charge accumulate over positive plate and negative over R negative plate. Okay, but due to the repulsive force, there must be do the certain work against this such repulsive force, and this work is stored as a energy between the plates. That is called the energy of capacitor. मतलब जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होने लगता है तो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से जो पॉजिटिव जा रहा है दे विल रिपेल टू ईच अदर. एज इट रिपेल देयर मस्ट, यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, फिर भी उसके अगेंस्ट ये यहाँ पे जमा हो रहा है. और जब जमा हो रहा है तो वहाँ पे वर्क डन हमारा नेगेटिव है एंड वी नो द एवरी वर्क नेगेटिव वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो let dq be the charge accumulate
accumulate over the plate. Accumulate over the plates. P. Therefore, work done against repulsive force. Work done against repulsive force. Okay? And this will be equal to dW equal to Q dQ into, suppose the potential difference is V is there. Okay? So dQ into V. Such work is stored as पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है. देयरफॉर DE is equal to DQ into V. So E is equal to V into DQ. Am I right here? No. But we have V equal to Q upon C, where C is the capacity. C is the capacity. Substitute this value here. ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. Then we calculate V, that is the Q by C into dQ. Initially we consider 0, and when it start for the charging and maximum charge accumulated by this plate, that is the capital Q. So it will be equal to Q square by 2C, and the limit is Q. So energy of the capacitor is equal to Q square by 2C. Okay? So this energy is stored between the plates. दोनों प्लेट के बीच में ये स्टोर हो जाता है. It is the energy of capacitor. It can be written in another form also. जैसे हम लोग Q को लेते हैं, Q इक्वल टू होता है C इंटू V. हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन वी गेट हाफ CV स्क्वायर. ओके? अनदर फॉर्म, मान लो यहाँ पर हमने C की वैल्यू रख दिया, तो Q बाई V कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? Q इंटू हाफ Q इंटू V. So these are the formula for capacitor of energy of capacitor. किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो यही होता है Q स्क्वायर बाई 2C, E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, E इक्वल टू हाफ Q इंटू V. तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है? तो अब इसको अब ये फॉर्मूला को यूज करके हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी को फाइंड करें. एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सपोज वी हैव अ कैपेसिटर हैविंग द प्लेट P एंड R. एक P प्लेट है और एक R प्लेट है. P पॉजिटिव है और R हमारा नेगेटिव से ज्वाइंट है. ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव है, और यहाँ V वोल्टेज सप्लाई हो रही है दोनों के बीच. अब जैसे ये चार्जिंग शुरू होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर एक्युमुलेट होना शुरू होगा, और जब पॉजिटिव एक्युमुलेट होगा तो दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स होगा. रिपल्सन के कारण इसमें क्या होगा कि ये चार्ज एक्युमुलेट होता जाएगा. नेगेटिव प्लेट जो है आपका, इस पर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा जिससे कि इसकी कैपेसिटी बढ़े. एम आई राइट? नाउ
अब हम क्या करें, सपोज करते हैं, सपोज वी ओनली डी क्यू charge accumulated over the P plate, then work done will be dq into V. Such work is stored as a potential energy. So D is equal to dq into V. So E equal to V into dq. But V is what? Q by C. C is the capacity. That's why Q by 1 by C taken as a common. And X dx का होता है x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन में ऐड हो जाता है पावर, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2c. पुटिंग द हायर लिमिट दैट इज द कैपिटल Q एंड इट इज लोअर लिमिट. सो इट टोटल एनर्जी विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर. सो E इक्वल टू हाफ Q इंटू V. दीज आर द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. Okay, so now we find the energy of parallel plate capacitor. What will be the energy of parallel plate capacitor? We have a parallel plate is there. It is the parallel plate capacitor. Energy of parallel plate capacitor. Okay. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है? हाँ, कैपेसिटी होती है इन एयर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वेयर A is the area of each plate, area of each plate, D area between the plates, distance between the plates, D is the distance between plates. Okay. Also electric field, that is the sigma upon 2 epsilon naught. Electric field between the plate we have already discussed in previous video. So E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, and sigma is equal to Q by A epsilon naught. So potential will be equal to E into D. Okay. So now we calculate. First of all we find the sigma total electric field. यहाँ पे total electric field consider कर रहे हैं. Q by A epsilon naught E into D is there. So total energy कितनी हो जाएगी? हम एक प्लेट का निकाल रहे थे, हम अलग अलग निकालने के बजाय एक साथ निकाल लें. तो ये आ गया एनर्जी हाफ CV स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट A by D इंटू ये कितना आ जाएगा Q by A एप्सिलॉन नॉट इंटू D. तो V स्क्वायर यहाँ पे V सिग्मा के फॉर्म में ले लें तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू D. तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई इंटू हाफ. तो D से D कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया. ठीक है, एक D बचा है यहाँ पर. तो यहाँ से एनर्जी क्या आ गई अपने पास? हाफ सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D. यहाँ पे एक D बचा रहेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल किया हमने. A इंटू D, बट A इंटू D इज व्हाट? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर. वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा E इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम. ठीक है, इसको यदि हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें, इंटीग्रेशन के फॉर्म में
इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या होगा देखो आप एक बार, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी इंटीग्रेशन के फॉर्म में हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय, ये हमारी एनर्जी है, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी टोटल इंटीग्रेशन. It is the energy of parallel plate capacitor. Now we can also find the energy density. Energy density. Energy density is what? Energy per unit volume. It is called the energy density. ठीक है, तो यहां पे एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी दैट इज द डीई बाई डीवी एंड इट इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट. So energy density can be written as energy density of parallel plate capacitor is equal to half E square epsilon naught or half sigma square epsilon. It is a very important derivation. It is used in various numerical problems and as well as objective problem, and it will be also asked this derivation in as a conceptual question in board exams. Nowadays in board exams there will be 70% question will be asked as a conceptual questions. Direct questions is coming only at 10%, which come to the direct derivation. That's why it is like a conceptual questions, so it is very important for your board exam also. Okay, so now we again repeat it. Now C equal to epsilon naught A by D we have already discussed, हम already जानते हैं इसको. टोटल ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, E इंटू डी तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट. दैट इज द पोटेंशियल. इट इज व्हाट? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. It is the potential difference between the plates. Okay, but energy is what? Half CB square, so half epsilon naught A by D. We put the value of potential E is equal to sigma by epsilon into D. So sigma square by epsilon square, it is the epsilon square, okay, into D square. So D will be cancelled out and it will becomes sigma square by epsilon naught A into D, where A into D are the volume of capacitor, volume between two plates. Capacitor means between two plates, दोनों प्लेट के बीच का वॉल्यूम ले लिया हमने. ठीक है, सो एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डीवी. इट इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन. सो वी पुट हियर क्लोज इंटरवल. Energy density, energy by volume, that is the energy density. Energy density is dE by dV. So half sigma square by epsilon naught. Sigma equal to E into epsilon naught. So we put here energy density of parallel plate capacitor, that is the half E square epsilon naught, half sigma square by epsilon naught. That is the energy density of parallel plate capacitor. So it is the energy of capacitor and energy of parallel plate capacitor. Our next topic is how to solve the problem related to the capacitors, series and parallel combination. So I am giving a certain concept, that is the 3 or 4 concept is there. जब ये 4-5 कंसेप्ट सीख जाओगे तो आप किसी भी लेवल के कैपेसिटर के प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आ जाएगा. ठीक है, तो हम एक एक कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो.
ठीक है, और इसको आप बार बार देखना और फिर इससे सीख जाओगे कि प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे कैपेसिटर की। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं कंसेप्ट नंबर 1। हम लेते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1, टू डिटरमाइन the charge in parallel combination, charge of capacitor in parallel and potential of capacitor in series. V of capacitors in series. Okay, so now we look here. Suppose we have the two capacitor joined in parallel. It is the positive plate and it is negative one. It is positive plate and it is negative one. It is C1 and it is C2 joined in parallel. In parallel combination we have already discussed. Charges are different but potential remains same because both the positive plate are joined between these 2 points A and B, and its potential is total potential is B there. Okay, so we using the concept, the potential is constant for these two, so there will be, suppose plus Q1 charge is here, plus Q2 charge is here, and total charge, that is the the total charge Q1 plus Q2. Now since the potential are equal, that means Q1 by C1 is equal to Q2 by C2, since V are equal, potential are equal. Potential are equal. So now adding Q1 upon Q2 is equal to C1 by C2. Adding both of 1 add कर दें दोनों तरफ, then Q1 by Q2 upon Q2 is equal to C1 plus C2 upon C2, and it will be becomes total charge by Q2 is equal to C1 plus C2 upon C2. So Q2 is equal to C2 into Q upon C1 plus C2, that is Q2. ये हमने निकाल लिया Q2. Okay, so to charge in parallel combination में किसी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज सप्लाई हो रहा है Q, तो सिंपल उसकी कैपेसिटी इनटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो और टोटल कैपेसिटी C1 plus C2 यहाँ पे लगा देंगे. Similarly also we can find, then how the Q1 is find, total capacity into total charge divided by C1 plus C2. So it is the way, these two formula is very important to determine the charge. In objective questions we use the directly, in subjective also we can use it is directly. Okay, so in parallel combination we can find the charge on each capacitor by this method. It is the way, basic concepts for the first case. In second case we have a series combination of capacitor having capacity C1 C2. In series combination
charges are equal in both the कैपेसिटर, ये दोनों में कैपेसिटर में सेम है, ये हमारा है V1 और ये हमारा V2, और ये टोटल सप्लाई हम यहाँ से V कर रहे हैं, V, ठीक है। अब ये V कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आएगा V1 प्लस V2। अब इसमें चार्ज इक्वल होता है, बट C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, सो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, ओके। सो वी हैव adding both our side by 1, V2 plus V1 plus 1, so we get the C1 plus C2 upon C2 is equal to V upon, क्योंकि ये आ जाएगा V2 plus V1 upon V1, so V1 is equal to C2 into V upon C1 plus C2. It is the potential formula for the potential find in the series combination of given capacitors, and it is also equal to V2 becomes, क्या हो रहा है देखो, जिसकी पोटेंशियल तुम्हें निकालनी है उसका कैपेसिटी नहीं लेना, उसके बाद वाले का लेना है। तो C2 ले लिया, C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2, तो V2 हमारे क्या आ जाएगा, C1V अपॉन C1 प्लस C2, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, very important formula for the numericals and as well as in objective. So it is the first concept to how to determine the charge of capacitor in parallel combination and in series combination. Okay. So now we move to second concept. First of all, we solve the certain examples. In this case, we are taking one example combining both series and parallel. दोनों एक साथ ले लेते हैं एग्जाम्पल्स में, तो वो अच्छी तरह से फिर समझ में आ जाएगा। In second concept, we have a second concept, that is, पहले इसमें एक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, प्रॉब्लम ले लें हम पहले, प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल नंबर 1। It is negative, we are taking, it is the positive plate having capacity 6 microfarad, 8 microfarad. Find charge and potential in each capacitor. Okay, it is the questions. Now, how to use that concept which we have discussed. Now we have a 3 capacitor is there, 1 in series, 2 in parallel. So first of all we have to find the total capacity. Total capacity निकालना है अपने को. Total capacity is not given there. ये निकालना है पहले.
तो कैसे निकालें? पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 और सीरीज में होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द पैरेलल कॉम्बिनेशन and it becomes 12 plus C dash is equal to 12 plus 4, that is 16 microfarad. So it becomes 16 microfarad and it is 8 microfarad. Therefore 1 by C total will be equal to 1 by 8 plus 1 by 16. LCM आ गया हमारा 16, तो ये आ गया 2 plus 1, तो C total will be equal to 16 upon 3 microfarad. Okay. First of all, we have to find the total capacity. C total. Okay. Now, what will be the total charge? Therefore, total charge Q is equal to 10 CV, 10 into 16 upon 3, that is 160 by 3. इतना माइक्रो कूलम टोटल चार्ज आ गया हमारा. ये काम तो हम सबसे पहले कर ले. पहले हम टोटल कैपेसिटी निकालें सर्किट की और फिर टोटल चार्ज निकालें. ठीक है. अब इसमें हमें निकालना है, सबसे पहले हम चार्ज लेते हैं Q1. इसमें तो सेम आ जाएगा, इसमें Q1 है और इसमें Q2 है. यहाँ पे हम लिख दें प्लस Q1 माइनस Q1, यहाँ लिख दें प्लस Q2 माइनस Q2. पहले हम चार्ज निकाल रहे हैं, चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर. हर कैपेसिटर का चार्ज निकाल रहे हैं. सबसे पहले फॉर 8 माइक्रोफैराड, C की वैल्यू कितनी आएगी? चार्ज कितना होगा? सेम होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 160/3 माइक्रोकूलम. तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट का आंसर कि इसमें 8 माइक्रोकूलम में चार्ज इतना होगा. ठीक है. अब लेते हैं हम लोग 4 माइक्रोकूलम एंड फॉर 4 माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड कैपेसिटी. इसके लिए निकाल रहे हैं हमें Q1 निकालना है. Q1 इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, यही होता है ना. Q की वैल्यू पुट कर दें 160/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16. ठीक है. इतना माइक्रो कूलम. कैंसिल कर दो, ये आ गया 40/3 माइक्रो कूलम. तो ये आ गई हमारे पास Q1. ठीक है. आ गई बात समझ में. अब लेते हैं Q2. Q2 कितना आएगा? 12 से लेंगे, 12 इंटू 160/3 डिवाइडेड बाई 16 माइक्रो कूलम. और इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा? 120/3 माइक्रो कूलम. सो इट इज द वे टू फाइंड द चार्ज इन ईच कैपेसिटर. हर कैपेसिटर का चार्ज हमारा ये निकल गया. देखो आप, ये हमारा Q1 निकला और ये Q2 निकल गया. ये निकला 4 माइक्रोफैराड के लिए और ये निकला फॉर 12 माइक्रोफैराड के लिए. ठीक है. चार्ज निकालना तो सीखे. अब निकालते हैं पोटेंशियल. देखो इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, तो ये पोटेंशियल हमारा सेम हो गया. इसमें यहाँ पे V है, यहाँ पे V है. ठीक है. चार्ज इसकी पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है और इसकी पोटेंशियल है V2. इसकी पोटेंशियल V1 मान लें और इसकी पोटेंशियल मान लिया हमने V2. अब हम सबसे पहले V1 निकाल लेते हैं. सीरीज वाले कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम. पोटेंशियल के लिए क्या करें हम? V1 निकालें. V1 होता है C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2. C2 यहाँ कितना है? 8 माइक्रोकूलम.
इंटू वी 10 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 24 इतना माइक्रो वोल्ट। ये माइक्रो कैंसिल हो जाए, इतना वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 10/3 वोल्ट। इसी तरह हम V2 निकालेंगे। ठीक है, इतना वोल्ट आ गया। अब हम निकालते हैं V2। V2 हमारे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 लेंगे, 16 और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 20/3 वोल्ट। सिमिलरली तो इस तरह से हम पोटेंशियल और चार्ज निकालना सीख गए कि सीरीज में और पैरेलल में चार्ज हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। तो ये बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट आ गया, ये कंसेप्ट आया। तो इसमें ये जब भी आएगा 2 या 3 मार्क्स का आएगा। जितने कंसेप्ट होते हैं क्वेश्चन में उसी के हिसाब से मार्किंग होती है, ये याद रखना। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा और 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, यानी हाफ हाफ दोनों के लिए, हाफ हाफ दोनों के लिए, और यहाँ पे हाफ और यहाँ हाफ। इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बोर्ड में। और ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में निकाल लेंगे। तो ये दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया, पहले कंसेप्ट का एग्जाम्पल समझ में आया। अब लेते हैं हम लोग दूसरे कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2। This question is also very important for the NEET and main exams. Especially for the NEET exam, it is a very important question. Various time such type of question asked. Okay. So now we have a second concept, concept number 2. In concept number 2, suppose we have the combination of series and parallel, various capacitor is there. जैसे मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, लॉन्ग चेन बना रहा है। ये हमारा अब इसमें टोटल कैपेसिटी निकालना है। इसमें सबसे पहले ये बता दूं कि बच्चे क्या गलती करते हैं, आप क्या गलती करोगे। कई बार क्या करते हैं कि इसको तो सीरीज में ले लेते हैं और इसको पैरेलल में सॉल्व कर देते हैं, और फिर ये सारी सीरीज में लेके ये पैरेलल में लेके आपस में सॉल्व कर देते हैं, जो रॉन्ग मेथड है। क्यों नहीं हो सकता वो, उसका रीजन बता रहा हूं आपको। आप इसमें देखो, इसमें चार्ज डिवाइड हो रहा है। मान लो Q चार्ज सप्लाई हुआ, यहाँ पे Q1 गया और इसमें Q2 आएगा, फिर इसमें Q3 आएगा और इसमें Q4 आएगा। इसमें हमारा वापस Q1 आ गया, Q3 प्लस Q4 मिल करके, और इसमें Q आ गया Q1 प्लस Q2 मिल करके। तो इसमें सब में चार्ज अलग अलग है। यहाँ पे चार्ज है Q3, इसमें भी Q3 है और इसमें भी Q3 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो वी मस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट एंड, क्लोज एंड। दिस क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व फ्रॉम द क्लोज एंड। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि it is solved by chain as a series and parallel from closed end। जो हमारा क्लोज्ड एंड होता है वहां से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसमें
एक एक करके सॉल्व करते जाओ। यहाँ नाम डाल दें हम, यहाँ नाम डाल दें हम कुछ। H। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फॉर DEFG। कितना आ गया? ये तीनों हमारे सीरीज में और ये हमारा पैरेलल में है। तो सीरीज में है तो सीरीज में आ जाएगा हमारे पास C/3 प्लस यहां तक तो ये C/3 हो गया, C/3 प्लस C, क्योंकि सीरीज के लिए याद रखना, सीरीज के लिए होता है फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर C equivalent is always equal to C/n, n number of capacitor, n is the number of capacitor। ठीक है। फॉर पैरेलल, अब यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लेते हैं तो C डैश की वैल्यू होती है n इंटू सी। सो वी आर यूजिंग, हमने इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज किया, देन वी गेट 4C/3। ठीक है। अब ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है, ये चेन हमारा, ये वाला जो नेटवर्क है ये सॉल्व हो गया। अब हमारा नेटवर्क कितना बचा? ये बच गया अपने पास यहां तक हो गया सॉल्व। ये तो हो गया हमारा 4C/3, ये आ गया C, ये C आ गया। आ गई बात समझ में यहां तक? अब हमारे पास अब क्या बचा? A C D G H एंड B। अब हम ये वाला नेटवर्क लेते हैं, नंबर 2। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो हम नंबर 2 लेते हैं अब। ठीक है। नंबर 2 में देखिए आप, नंबर 2 में यहां कैपेसिटी हो गई 4C/3, C एंड C इन CDGH। 1/C डबल डैश कितना आ गया? 3/4C प्लस 1/C प्लस 1/C, और ये यहाँ एलसीएम आ गया हमारे पास 4C। ठीक है। ये आ गया 3 + 4 + 4 यानी 11/4C। अब यहाँ पे C डबल डैश इज इक्वल टू 4C/11, बट वी हैव ऑल्सो, अब ये वाले कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा हो गया, ये इतना आ गया और ये आ गया हमारे पास 4C/11। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये दोनों हमारा क्या आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C3 इक्वल टू मान लेते हैं कितना आ गया? C + 4C/11 एंड वी गेट 15C/11 C ट्रिपल डैश। तो ये हमारा सेकंड वाला जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला सॉल्व होने पे टोटल कितना मिला? 15/11। अब हमारे पास जो नेटवर्क बचा वो इतना ही बच गया ना, A B C एंड H। इसकी वैल्यू आ गई 15C/11। ये हमारा C है और ये भी C है थर्ड केस में। अब यहाँ देखो ये तीनों हमारे किस में? सीरीज में। तो अब हम इन तीनों को सीरीज में सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 11/15C। एलसीएम आ जाएगा 15, ये आ गया हमारे पास 15 + 15 + 11। सो वी गेट द C टोटल इज इक्वल टू 15C/41। ध्यान रखना यहाँ पे हम इसको रिवर्स करते हैं, कई बार बच्चे रिवर्स करना भूल जाते हैं, ये रेसिप्रोकल है। तो देन वी हैव अ टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस 15C/41।
दैट इज द आंसर. सो आई होप कि जब भी इस तरह से लेडर टाइप, इसको लेडर क्वेश्चन बोलते हैं, जब भी ये लेडर टाइप क्वेश्चन आ जाए तो कॉम्बिनेशन इस तरह से बना हुआ हो तो हम सॉल्व कहाँ से करेंगे? लास्ट वाले से. लास्ट वाले से सॉल्व करते हुए चेन से आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप लास्ट में सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो इट इज दिस concept number 2. Okay, so now we are taking the concept number 3. Concept number 3. कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम अभी जो अपने लेटर लिया था वो मान लो इनफाइनाइट सीरीज है. ये हमारा है फॉर इनफाइनाइट सीरीज. इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? फॉर इनफाइनाइट सीरीज जैसे हमारे पास ऐसे दिया हुआ है. It is repeated up to infinite. ठीक है, ये एक लेटर इनफाइनाइट सीरीज का है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इसमें. ठीक है, अब हम इनफाइनाइट सीरीज के कैसे सॉल्व करते हैं. मुझे एक बात बताओ, रिवर में पानी जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में से यदि हम 1 लोटा गंगा जल बाहर निकाल लें तो क्या उसमें चेंज आ जाता है? ऐसा हो जाता है क्या? यदि रिवर है, रिवर बह रही है, इनफाइनाइट है, उसमें से यदि हम एक को निकाल भी लें तो हमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना. तो यहाँ पे हम उसी कंसेप्ट को यूज में लेंगे. हम यदि इसको यहाँ से अलग कर दें, सो इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट केस. इनफाइनाइट सीरीज. ठीक है, दो ये यहां से रिपीट है. ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि we remove we consider the total capacity of repeated combination after leave the first combination. एक को हटा भी दें, ठीक है, एक को हटा भी दें तो टोटल कैपेसिटी इसकी हम लोग मान लेते हैं C, दैट इज द टोटल कैपेसिटी. X मान लेते हैं, X. एक को रिमूव करने के बाद भी बाकी जो है वो उसको हमने X मान लिया. अब जैसे हमने इसको X मान लिया तो ये क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा हो जाएगा, इसका टोटल X.
अब ये हमारा कॉम्बिनेशन क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लें। नाउ ये हमारा कैसा हो जाएगा, C प्लस एक्स ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ देयरफॉर व्हेन वी कैलकुलेट टोटल हमने क्या माना था, 1/x माना है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c अपॉन 1 प्लस c प्लस एक्स। एलसीएम कितना आ जाएगा, c इंटू c प्लस एक्स, ऊपर कितना आ गया, c प्लस एक्स प्लस c प्लस c। यहां हमने x क्यों लिया, क्योंकि टोटल कैपेसिटी हमने क्या माना है, x माना है, तो यहां पे टोटल x ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 3c प्लस एक्स डिवाइडेड बाई c इंटू c प्लस एक्स। नाउ इट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो गया, 3cx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2cx माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। It becomes a quadratic equation. We obtain the quadratic equation. After solving this quadratic equation, we get the answer. We यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -2c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 c स्क्वायर divided by 2. So x is equal to minus 2c plus minus 12c square divided by 2 minus 2c plus minus 2 root 3c divided by 2. Now here we are obtaining the two values of x. One is negative, another is positive. So we are taking only positive there. यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है -2c माइनस 2 रूट 3c बाई 2 और दूसरा आ रहा है हमारा √3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। ये तो एक वैल्यू आ गया और ये वैल्यू चूंकि नेगेटिव है इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। नेगेटिव इज नॉट टेकन, नेगेटिव इज नॉट टेकन, नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 माइनस 1 c अपॉन 2 इंटू 2 2 कैंसिल आउट, x इक्वल टू √3 माइनस 1 c, that is 0.732 c. So it is the answer. इसको नहीं भी ले, ऐसे भी ले सकते हैं हम केवल x। ये हमारा मिल गया टोटल कैपेसिटी इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इट इज द थर्ड टाइप इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सो वी हाउ टू सॉल्व इट नाउ, एक को हटा करके बाकी को हम x एज्यूम कर लेंगे और ये x और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा और जब ये पैरेलल होगा तो c और x पैरेलल हो गया, ये दो हमारे c आ गए। तो पैरेलल में c प्लस एक्स होता है, दैट इज c प्लस एक्स। सो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स इक्वल टू c प्लस एक्स प्लस c प्लस c। So we have a total answer is there √3 minus 1 into c. Negative term cannot be used because capacitor never with a negative. So it is the concept number 3rd, how to solve the infinite series of capacitors. Okay.
Now we come to the fourth concept also. Today we are discussing the fourth concept, and in next video we are discussing about another 3 or 4 concept is there. And after that we are giving, after that we also make the video for the NEET students after completing this chapter. Okay, now we come to fourth concept is there. What is the fourth concept now? It is the fourth concept. Okay, in fourth concept, suppose we have a 5 capacitor joined as this way. C1, C2, C3, C4 and C5, like this one. It is not solved by this way to consider these two as a series and this one as a parallel, and we add both of them. So it is not a way to solve this one. It has a certain concept is there. What is that concept? In this case, if C1 upon C2, ratio of the C1 C2 is equal to C3 by C4, then what happened? In that case, suppose it is A, B, C and D. So in that case, the potential at B and potential at C both are equal. It is the concept is there. Then potential at B and potential at C both are the equal. So if therefore VB minus VC is equal to 0, then there will be no potential difference across the C5. That is, no potential difference across C5. C5 के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं लेंगे. तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर नो चार्ज इन C5, hence it is neglected. ये ध्यान रखना, इसलिए हम लोग C5 को नेग्लेक्ट करते हैं यदि ये कंसेप्ट अपने पास है C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 बाई C4. आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब इससे क्या होगा? C1, C2, C3, C4 हमने हटा दिया उसको बीच से. अब क्या हो गया अपने पास? These two are in parallel as series. इसको हम सीरीज में सॉल्व कर लेते हैं. सीरीज में क्या आएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और नीचे वाला क्या आएगा? C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4. सो टोटल कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 upon C3 plus C4. So it is the total capacity in this case to calculate by this concept. I repeat again, okay, suppose there are the 5 capacitor is there, B and C, C5, C1, C2, C3 and C4 is there. How to solve it now? First of all, we look C1 ratio. What is the ratio of C1, C2 and C3, C4? If they are equal, that means potential at V, BV, potential at here and here, both are equal, then it is possible. So if potentials are equal, then potential difference is 0. In capacitor, we are always taking
potential difference, not a potential. So potential difference is 0, therefore no charge in the C5, hence it is neglected. It always neglected there. When we neglect the C5, this circuit becomes C1 C2 upon C3 C4. So these two are series, so we can add 1 by C1 plus 1 by C2 and we obtain this one. And C3 C4 both are in series, so after solving these we get C3 C4, C3 plus C4. And now these two are in parallel, therefore C total will be this one. So we can calculate the total capacity in this combination. Okay? So now we look some problems related to such concept. We solve the certain examples based on such concept. First example number 2 is there. Okay, we have to find the total capacity between A and B. How to solve it now? Using that concept which we have discussed. What is the concept? Concept is that if C1 C2, ratio of the C1 C2 and C3 C4 are the equal. चेक कर लेते हैं C1 upon C2 कितना आ रहा है 10 by 15 यानी 2 by 3. C3 and C4 is also the 20 by 30, so it is also 2 by 3. Therefore C1 upon C2 is equal to C3 by C4. Hence if this ratio is equal, then what happens? Potential difference across 50 microfarad is 0. Hence 50 microfarad consider is neglected. इसको नेगलेक्ट कर दें. अब क्या हो गया हमारे पास? सिंपल आ गया. ये सिंपल है. 10, 15, 20 and 30 माइक्रोफैरड. अब इसको सॉल्व कर लें. कितना आएगा? सी डैश कर लेते हैं दोनों का. 10 इंटू 15 बाई 25 कैंसिल करते हैं. 3, 5, 2, 6 माइक्रोफैरड. सी डबल डैश 20 इंटू 30 बाई 50 we get 0, 0 cancel out. 4, 3 is 12 microfarad. And C total is what? It is equal to 12 plus 6, that is 18 microfarad answer. तो have you understood? समझ में आ गया बात? क्या किया हमने? पहले C1 C2 का रेशियो निकाल लिया, C3 C4 का रेशियो निकाला. दोनों यदि इक्वल है तो हमने क्या किया? यदि इक्वल है तो हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया. जब 0 हो गया तो 50 माइक्रोफैराड को नेगलेक्ट कर लें. और जब हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो 10 और ये दोनों हमारे सीरीज में होंगे, ये दोनों भी सीरीज में होंगे. और इस केस में हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे सीरीज में, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम सीरीज में, और बाद में दोनों पैरेलल हो गया. तो आ गई बात समझ में? अब इसी टाइप के ये जो हमारा टाइप्स है, सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम इसमें किस तरह से आता है इसी कंसेप्ट में, वो देख लेते हैं हम.
सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे आएगा? And it is a very important problem for every exams. C, consider as a C, A, B. एक ये और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये वाला। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? इस डायग्राम से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर, आप सोचते होंगे कि सर इसको सीरीज पैरेलल हम कैसे माने, यहाँ तो ये सीरीज लगता है, यहाँ पैरेलल लगता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो आप, जस्ट मेक द वर्टिकल, स्ट्रेच इट। इसको वर्टिकल बना लो ऐसे, इसको वर्टिकल कर लो, स्ट्रेच करो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। आफ्टर स्ट्रेचिंग, इट इज ए, इट इज बी, इट इज पी एंड इट इज क्यू। ठीक है, यहां पे हम थोड़ा वैल्यू चेंज कर देते हैं, tan c रख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है और यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है। अब इसको कंसीडर करते हैं, बताते हैं हम कैसे। इनके बीच एक कैपेसिटर है C, इनके बीच कैपेसिटर P और Q के बीच tan C, फिर हमारा Q और C के बीच, Q और P के बीच C, यहाँ भी C, यहाँ भी C। ये आ गया इस फॉर्म में। जब ये इस फॉर्म में आ गया तो अब इसके सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 और ये C4 है। ठीक है, ये चारों हमारे कैपेसिटर हैं। सिंस C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 1, C3 by C4 is equal to 1. Therefore, C1 upon C2 is equal to C3 by C4 is equal to 1. Hence, अब ये दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे? tan C can be neglected. Can be neglected. इसको नेग्लेक्ट करें। tan C can be neglected. अब जब इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, अब क्या बचा हमारे पास? ये हट गया बीच वाला। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो C टोटल कितना आ गया? C इंटू सी अपॉन 2C प्लस C इंटू सी अपॉन 2C, तो ये आ गया हमारे पास C। तो टोटल आंसर आ गया अपने पास C। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं सेकंड में। सेकंड में भी ऐसे ही बना लेते हैं डायग्राम, तो इजी होगा। डायग्राम बना लेते हैं, इसको जस्ट स्ट्रेच कर लेते हैं। आफ्टर स्ट्रेचिंग, देखो ये आगे A, ये B, ये P, ये Q। अब देखो इधर A और P C कैपेसिटी है, P और Q tan C है और Q और B C है। अब इस केस में ये पोटेंशियल इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ कैपेसिटी है, यहाँ कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए हमारा P और Q के बीच में tan C है।
अब आप देखो इसमें ये यहाँ ब्रांच हो गया, जहाँ भी ब्रांच होता है वो पैरेलल होता है। यहाँ ब्रांच हुआ, यहाँ ब्रांच है और यहाँ ब्रांच है, ठीक है। तो ये तीनों ब्रांच हैं, तो जब ब्रांच होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल है तो सी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी प्लस 10c प्लस सी इक्वल टू 12c इज इक्वल टू 12, कितना आ गया 12c। ऑल थ्री आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दीज बोथ क्वेश्चंस sometime also asked in questions, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ऑल्सो, नीट में तो कई बार आए ये क्वेश्चन। इसी में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये यहाँ के बजाय यदि यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।